कौन कंजी? कल्पना, हाँ कल्पना, कल्पना, यस सर। कैमरा ऑन करो। यस सर। कैमरा ऑन करो। तुम सुन नहीं पा रही हो क्या कल्पना? कल्पना तुम सुन नहीं पा रही हो क्या? कल्पना तुम सुन पा रही हो जो हम बोल रहे हैं? यस सर, सुन बोल रहे सर। हाँ, कैमरा ऑन करो। ये हुए सर। नहीं ऑन की हुई हो? हाँ ठीक है, चलो। ये अब अभी तुम क्लास में हो, ये तुमको पता है ना? यस सर। तो तुम क्या बात कर रही हो, क्या गाना गा रही हो, आ रहा है तुमको समझ में? रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? सर हम गाना गा रहे सर। सॉरी सर, नहीं ध्यान। नहीं तो ध्यान दिया करो। मतलब सेकेंड ईयर में पहुंच गए, अब फिर तुमको बताना पड़ेगा कि हम ध्यान नहीं दिए। सॉरी सर, देखे नहीं थे सर, ऑन कर दिए। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड मेरे ख्याल से आप लोगों को एक पीडीएफ मिला होगा, देखो ग्रुप में। यस सर। तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ कैश। जब आप बिजनेस करते हैं या अकाउंटिंग करने का बेसिस कितना होता है, डू यू नो? अकाउंटिंग करने का बेसिस कितना होता है? अकाउंटिंग करने का बेसिस कितना होता है, ये पता है क्या आप लोगों को? एनीबडी? कैश और क्रेडिट। हाँ, कैश बेसिस क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस मतलब क्या हुआ? कैश और क्रेडिट बेसिस का कैश मतलब कैश पे करके करे, और क्रेडिट मतलब जो उधार पे ले। अच्छा, एनीबडी एल्स? आशीष, वेद? सर कैश बेस अकाउंटिंग में जो अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तभी उसको नोट करेंगे, और क्रेडिट में क्रेडिट वाले भी नोट करेंगे और कैश वाले भी। क्यों? क्रेडिट का तो नाम है क्रेडिट, तो फिर उसमें कैश वाले को क्यों रिकॉर्ड करेंगे? वेद? सर शायद फिर क्रेडिट ही करेंगे शायद सर फिर। देखिए, अकाउंटिंग करने का दो बेसिस है। देयर आर टू बेसिस फॉर अकाउंटिंग। वन इज कैश बेसिस एंड द अदर वन इज अक्रूवल बेसिस। वेद क्या है वो? क्रेडिट बेसिस नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल भी। ARRUAL, अक्रूवल बेसिस। ये दो तरीका है जिसके सहारे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। Now, what is cash? As you all rightly said, कि according to cash basis, we recognize the transactions and record it in the books of accounts. We record it in the books of accounts only when the cash comes in or cash goes out.
only when the cash comes in or cash goes out. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now on accrual basis, what you do, the moment a transaction takes place, the moment you identify that a transaction has taken place, irrespective whether you have received cash or not, the value of the transaction which has taken place gets recorded in the books of accounts. This is called accrual basis. You do not look upon whether cash has been received or not. You simply recognize that, okay, this transaction has taken place. Now it can be measured in terms of money. It gets recorded in the books of accounts. Say for example, sold goods of the value of rupees 1 lakh. Sold goods of the value of rupees 1 lakh. Is this a cash transaction or a credit transaction? I want the answer. Is this a cash transaction or a credit transaction? Cash transaction. Cash transaction. How did you come to know that it is a cash transaction? It is a cash transaction because no name of the party is mentioned, right? And Yes, neither sir. the word credit is being used, right? So in no way you can say that this is a credit transaction. This transaction is in cash. Now on cash basis, you need to record this entire sales of goods of the value of rupees 1 lakh. The moment you sold it, you have received cash and you record it in the books of accounts, right? Now another transaction is sold goods of the value of rupees 1 lakh and received rupees 20,000 in cash. In cash. So according to cash basis of accounting, what amount will be recorded in the books of accounts? 20,000. 20,000. 20,000. Why? Because Yes, only rupees 20,000 is being received. Only rupees 20,000 is being received. And what about rest 80,000? This 80,000 is a credit sale. This 80,000 is a credit sale. You have created a dater for the business, and this dater is supposed to make payment on, say, any future date from now. But according to accrual basis, you record the entire transaction of rupees 1 lakh. You record the entire transaction of rupees 1 lakh, right? Because this transaction has taken place. You have sold goods of the value of rupees 1 lakh and you have only received rupees 20,000. So 20,000 will be added to your cash balance and the rest of rupees 80,000 will appear as dater in the balance sheet at the asset side, because daters are created the moment you sell the goods on credit, isn't it? So accrual basis is very clear. It says you don't recognize the recording of a transaction on the receipt or payment of cash. Rather, on accrual basis, transactions get recorded in the books of accounts simply on the basis of them being recognized in terms of money, them being measurable in terms of money, right? Am I clear? Yes, sir. Say I'm giving you another very good example. Say if a business is in a rented premise, a business is in a rented premise, right? Rent is rupees 1 lakh per month. Rent is rupees 1 lakh per month, right? For the last 6 months, rent of only rupees 2 months have been paid. Rent of only 2 months have been paid. On the basis of cash, what amount will be recorded? On the basis of cash, what amount will be recorded? मैं दोबारा से बोलूं या फिर मैं इसको हिंदी में बोलूं? एक बिजनेस एक किराए के मकान में है, 1 लाख रुपए मासिक किराया है, पिछले 6 महीने में से केवल 2 महीने का किराया भुगतान किया गया है। कैश बेसिस में कितना अमाउंट लिखा जाएगा रेंट के तौर पे, एक्सपेंसेस के तौर पे?
2 लाख 2 महीने का ही। 2 लाख। 2 महीने का लिखा जाएगा। 1 into 2 lakhs। लेकिन Yes, sir. अगर अक्रूवल बेसिस पे करते तब क्या होता? तब क्या इंट्रा लिखते? ट्रांजैक्शन 6 लाख। सभी ट्रांजैक्शन 6 लाख लिखते, 6 लाख लिखते, होल ट्रांजैक्शन लिखते। आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए आपने शब्द सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया लेकिन बकाया है, दिया नहीं गया। भैया तो जब दिया नहीं गया तो कैश बेसिस पे तो इसको लिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते होंगे। ऐड करते थे या तो ट्रेडिंग अकाउंट पे, नहीं तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। यस सर। Yes, sir. क्या मुस्कान? यस सर। क्या यस सर? यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लिखते थे, कहाँ लिखते थे? आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा फाइनल अकाउंट बनाते समय? सर ये तो बैलेंस शीट में आते हैं। मन्नी कुमार, रोल नंबर 21, बैच 2, सॉरी बैच 1। यस सर। क्या मनी कुमार जल्दी बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा जी? कैमरा ऑन कर लो। सर उसको पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे इसको। समस्या है भाई साहब, समस्या है। आशीष तुम भी नहीं बताओगे? जो भी है म्यूट करो अपने आप को, जो भी है म्यूट करो। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सर विच इज ड्यू बट नॉट पेड। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हुआ खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू बट नॉट पेड। वेरी गुड, ड्यू बट नॉट पेड। मैं ये लाइन लिख देता हूं। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। लाइबिलिटी बहुत तरीके का होता है। सर ये करंट लाइबिलिटी है। हाँ तो बोलो करंट लाइबिलिटी है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे देखिए। ये सब आएगा पूरा कैश फ्लो बनाते समय, नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे फिर। नंबर ए या नंबर 1 देखिए। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे दिया हुआ है? तो क्या लिखा हुआ है? गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। रोल नंबर 53 तो है नहीं क्लास में? आकांक्षा? यस सर। क्या? सर बोल तो रहे हैं। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये कहां दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम दिया हुआ है उसका कितनी जगह ट्रीटमेंट होता है?
ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम दिया रहता है उसका कितनी जगह ट्रीटमेंट होता है आशीष, बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस ये अकाउंट में और बैलेंस शीट में सर। 2 जगह। 2 जगह। 2 जगह। यही मामला गड़बड़ है। सिर्फ एक जगह होता है, ओनली वन प्लेस। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम रहता है सिर्फ एक जगह ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक जगह। और अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसको कहां लिखेंगे, देख लीजिए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखेंगे। कहां लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट के Liability लायबिलिटी। ठीक है। अब दूसरा ट्रीटमेंट देखिए, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है या एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो जो भी आइटम एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है उसका कम से कम 2 जगह ट्रीटमेंट होता है, कम से कम, कभी कभी 3 जगह भी हो सकता है। एडजस्टमेंट में दिए गए आइटम का 2 जगह ट्रीटमेंट होना तय है मिनिमम। अब देखिए, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया एडजस्टमेंट में तो उसका कहां कहां ट्रीटमेंट होगा। नंबर ए, added to the related expense at the debit side of either trading account और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब ये केवल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाके ये ऐड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या है, डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। दूसरा इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, नंबर बी देखिए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस दे रहा हूं, फिर आपको फर्क समझ में आएगा। सैलरी, $7,000, ये डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है। वेजेस 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। अब नीचे एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट सैलरी ₹1,000 and wages ₹2,000 are outstanding. अब देखिए, बहुत सिंपल से मैंने बता दिया, एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देख लो, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है
ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है तो उसको सिर्फ एक जगह लिखेंगे, कहां चला जाएगा ये आइटम? Liability side of the balance sheet. Liability side. लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस Balance शीट। sheet. यानी कि अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में क्या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या दिया हुआ है? Outstanding rent है. Outstanding rent है. तो इसका सिर्फ एक जगह ट्रीटमेंट होगा, इसका दो जगह ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। ये सीधा कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के Liability लायबिलिटी side. साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां दिया हुआ है बाबू? Adjustment में. Adjustment. तो उसका कम से कम कितनी जगह ट्रीटमेंट होगा? दो 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 जगह. जगह. तो पहला जगह यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड कहाँ कहाँ करेंगे? या तो ट्रेडिंग में करेंगे और नहीं तो पीएल में। ऐसा नहीं कि दोनों जगह करेंगे, नहीं, या और लिखा गया, या तो ट्रेडिंग में करेंगे और नहीं तो पीएल में करेंगे। क्या करेंगे? जो उससे ऐड म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। जो रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें जाके क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कहां ऐड करेंगे ये भी मैंने लिख दिया है, एकदम डेबिट साइड में ऐड करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो भी डेबिट साइड में, पीएल में जाएगा तो भी डेबिट साइड में। किसमें ऐड करेंगे? किसमें ऐड करेंगे? रिलेटेड एक्सपेंस में। मतलब ऐसा नहीं कि सैलरी का आउटस्टैंडिंग वेजेस में जोड़ देंगे, वेजेस का आउटस्टैंडिंग मतलब इंश्योरेंस में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सैलरी का आउटस्टैंडिंग सैलरी में ही जोड़ेंगे, वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस में ही जोड़ेंगे। क्लियर है? Yes, sir. और Yes, दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आइए अब देखते हैं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? इसमें से कौन सा आइटम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? वेजेस। वेजेस Wages. जाएगा। Which is तो इसलिए जो तुम लोग बार बार बोल रहे थे पीएल में जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कौन सा आइटम है उस पर डिपेंड करता है। तो वेजेस है, तो वेजेस है तो सीधा कहां चला गया? वेजेस तो कहां चला गया? ट्रेडिंग Debit में. अकाउंट। तो Trading में. यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग। तो जो भी अमाउंट होगा वेजेस का कितना अब